Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to session number 13 of Organization Theory and Design. And today our topic of discussion is inter-organizational relationships. You might be remembering in the last session we talked about inter-organizational linkages, how companies try to control their environment by forming certain inter-organizational linkages. In this particular session, we will talk about how organizations develop relationships, or how our organizations are related to other companies in their environment, and the simile which we will be using. In fact, before I go to that simile, we will also discuss some of the philosophical basis of this comparison. Organizations, as I have myself told you, that organizations are very similar to organisms. Organisms means living entities, चाहे वो हम हैं, चाहे वो एक cell है, वो organism है. So we have seen that there are similarities between organizations and organisms. और ये एक organism ही है, cell जो हमने draw किया था, यूनी एक cell अगर हम समझें, this is an organism. और बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक there is another term in biology which is called ecosystem. Ecosystem will generally mean the communities, organisms living together, and the communities of organisms together with their environment is an ecosystem. For example, lake, झील जिसे हम कहते हैं, या एक पॉन्ड है पानी का पूरा इकोसिस्टम है, क्योंकि एक छोटी झील या चलें इसे पॉन्ड हम लिखते हैं, पॉन्ड जिसे हम तालाब कहते हैं. अब एक पानी का तालाब है, ये इसके अंदर 1000 किस्म की एल्जीज हैं, इसके अंदर फिश हैं, इसके अंदर टैडपोल्स हैं, इसके अंदर बैक्टीरियाज हैं, इसके अंदर बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं. इट इज फुल ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू द एक्सटेंट कि इसके ऊपर भी आपने देखा डैफोडिल, वो कमल के फूल, इसके ऊपर और कई तरह के पत्ते, फुल ऑफ दैट. एंड प्लस इट हैज द एनवायरनमेंट, प्लस एक सूरज ऊपर एनर्जी दे रहा है जिससे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी चल रहा है, पानी है, ऑक्सीजन हवा एटमॉस्फेयर से आ रही है, इसकी प्रोसेसिंग से जो वेस्ट हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट, वो बाहर आ रहे हैं. सो दिस इज वन कंप्लीट इकोसिस्टम विच इज ओनली व्हाट वी कॉल एज पॉन्ड, और पानी का एक तालाब. इसी तरह जंगल इज एन इकोसिस्टम, माउंटेन इज एन इकोसिस्टम, और फिर रेंज ऑफ माउंटेन्स इज अ ह्यूज इकोसिस्टम. इसी तरह हमारे फॉरेस्ट, जंगल, लेक्स, दरिया, ओशन मिल के मुख्तलिफ किस्म के इकोसिस्टम्स क्रिएट कर रहे हैं. कहीं पर ज़मीन हमवार है, कहीं पर माउंटेनेंस है, कहीं पर बहुत डेंस जंगल वाले इकोसिस्टम्स हैं, कहीं पर टुंड्रा है, जिस तरह बिल्कुल उजाड़, वीरान, ठंडी जगह या तपते सहरा. दे आर ऑल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इकोसिस्टम्स in which organisms and in environment are constantly interacting with each other. इसी कॉन्सेप्ट को लेके अब हम इसकी फिलोसॉफिकल डिटेल में भी जाते हैं. लेट मी फर्स्ट जस्ट कंपेयर इट. बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट से हम कंपनीज को भी रिप्रेजेंट ऐसे ही हमने किया, कंपनी एंड इट्स एनवायरनमेंट. एंड सिमिलरली, if in place of these organisms we have various organizations, एक ऑर्गेनाइजेशंस की कम्युनिटी डेवलप हुई, एक कम्युनिटी यहाँ डेवलप हो गई, एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस की ये डेवलप हो गई, एंड दे आर ऑल पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट. इसको भी हम कैन वी ऑल्सो कॉल इट एज एन इकोसिस्टम, बिकॉज द वेरियस कम्युनिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस are having a relationship with their environment which is very, very similar to this ecosystem. So we can define an organizational ecosystem as a system formed by the interaction of community of organizations and their environments. Very similarly, like we said, community of various species or organisms interacting among each other and environment. Similarly, the organizational ecosystem will be communities of organizations interacting with each other and also interacting with the environment. Now that is
basically the concept of ecology or the concept of evolution, basically biology. अब यहां से हम थोड़ा सा philosophical basis को discuss करने के बाद we will come back to the discussion at hand. But if we miss that philosophical discussion, then we will miss the spice in this debate or spice in this discussion. अब हम roots देखते हैं evolution, because most of the biology is constructed around the notion of evolution. Ecosystems are in front of us, and we know that there is environment. अब मैं biological environment की बात कर रहा हूँ, physical environment है, और उसके अंदर हम भी हैं, मुख्तलिफ जानवर हैं, परिंदे हैं, insects हैं, aquatic life है, plant life है, और ये animal plant kingdom इकट्ठी exist कर रही. अब why would the concept of organisms or ecosystems or evolution be relevant to organization? एक चीज तो कंपेयर करने के लिए, समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए है, जिसको हम मिसाल कहते हैं, सिमिली कहते हैं. बट आफ्टर द रोमांटिक एज ऑफ 19th century, आपको मालूम है 19th century was a period when romanticism was in the air as far as Europe is concerned. और ये रोमांटिसिज्म भी नतीजा थी 17वीं 18वीं सदी की इंटेंस एम्पिरिकल अप्रोच का. उससे पहले तो लोग, अब मिथ्स से बात शुरू होती कि लोग मिथ्स में रहते थे, उस जहालत को रिलीजन्स ने कम किया. मिथोलॉजी से लोगों को रिलीजन ने एक नई दुनिया दिखाई, रिलीजन से बात मेटाफिजिक्स पे आई, मेटाफिजिक्स से होते होते घूमते it came to positive science, positive philosophy, which means the element of religion, metaphysics was taken out from knowledges and they were purely made positive, positivist. Positivist means those things or those phenomena which can be recorded and observed. अब observed और recorded तो आप वही चीजें कर सकते हैं जो आप देख सुन सकते हैं, जो आपकी 5 सेंसेस में आएंगी. तो पॉजिटिविस्टिक अप्रोच ने इनविजिबल चीजों को, मेटाफिजिक्स को बहुत पीछे कर दिया, और जो ऑलरेडी इन यूज साइंटिफिक मेथड था नेचुरल साइंसेस का, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, उसको उन्होंने बायोलॉजी में भी अप्लाई करना शुरू किया, क्योंकि बायोलॉजी इज ऑल्सो ए नेचुरल साइंस. एंड हियर दे स्ट्रक द कॉर्ड ऑफ एवोल्यूशन. क्योंकि अभी तक ये समझ नहीं आ पा रही थी कि जब आप रिलीजन को भी पीछे कर देंगे तो आप क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड को कैसे एक्सप्लेन करेंगे. आप कई और फिनोमेनाज हैं रिलेटेड, उनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे. आप ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड को कहाँ से एक्सप्लेन करेंगे. आप क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग को किस तरह एक्सप्लेन करेंगे. तो इसके लिए इंसान के माइंड ने ज़ाहिर तगो दो कि जो यूरोपियन स्कॉलर्स को मिड ऑफ 19th century तक, they were very clear on the concept of evolution. I mean in their minds. अभी डार्विन ने अपनी थ्योरी पेश नहीं की थी. Darwin was also working on it, but Darwin theory was published in 1859 when he published his book The Origin of Species. और उससे पहले people like Herbert Spencer, they had written a lot of material on evolution, or their thesis or their main point was that we as human beings, we have evolved from lesser species. In fact, उनका ये thesis है कि हर higher order species has evolved from a lesser species. इसको उन्होंने काफी ज्यादा एक्सप्लेन किया स्पेंसर ने in terms of, he formulated a huge theory basically, in which he says that the process of differentiation and process of integration in terms of evolution goes on side by side. कि पहले तो स्पीशीज जो हैं वो स्पेशलाइज होती हैं, उसके बाद जब वो हाई ऑर्डर पे चली जाती हैं, इंटीग्रेट होती हैं, और फिर एवोल्यूशन पूरी हो जाती है तो डिसोल्यूशन शुरू हो जाती है.
क्योंकि एवोल्यूशन के बाद ये तो नहीं है कि सिर्फ एवोल्यूशन वन वे होती रहेगी, एवोल्यूशन के बाद डिसोल्यूशन होती, डिसोल्यूशन के बाद फिर एवोल्यूशन होती। अब यहाँ पे आके वेर ये स्पेशली स्पेंसर की फिलॉसफी में he mentions these cycles of evolution and dissolution and then evolution and dissolution। तो यहाँ पर आके फिलोसॉफिक, अब मैं आपके जहन में जो चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि कहीं आप ये ना तसव्वुर कर बैठें कि एवोल्यूशन एक फैक्ट है, एवोल्यूशन की थ्योरी एक रियलिटी है। दिस इज ओनली ए थ्योरी। You will never hear somebody saying that let's talk about the facts of evolution, because there are no facts. This is a speculative theory. It is attractive, no doubt, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज हर फील्ड में नजर आती है। देयर इज अ कंसिलियंस ऑफ नॉलेज बिटवीन ज्योमेट्री एंड मैथमेटिक्स एंड लिटरेचर एंड साइंसेस, कंसिलियंस है, इसमें तो कोई शक नहीं। बट दैट कंसिलियंस कैन नॉट प्रूव दैट एवोल्यूशन हैज क्रिएटेड दिस। और जब जो बिगेस्ट प्रोपोनेंट्स हैं एवोल्यूशन के, जो फेवर करते हैं एवोल्यूशन की थ्योरी को, खुद हर्बर्ट स्पेंसर की एग्जांपल देता हूं। ही वाज ऑब्वियसली नॉट ओनली ए सपोर्टर बट इनिशिएटर ऑफ अ लॉट ऑफ वर्क ऑन एवोल्यूशन। हर्बर्ट स्पेंसर का ये कहना है कि हम खुदा के बारे में, आखिरत के बारे में, फरिश्तों के बारे में वी कैन नॉट स्पेकुलेट, क्योंकि वो ये कहते हैं कि वी कैन नॉट कंसीव दैट दिस वर्ल्ड इज बिगिनिंगलेस। ये पॉसिबल नहीं है कि ये दुनिया शुरू से चलती आ रही। Is talking about this world, not Almighty. So he says that there must be a beginning of this world. और ये जब वो मानते हैं कि इस दुनिया का, इस कायनात का एक आगाज है, तो इसका मतलब है कि वो आगाज करने वाला एक होगा, तो आगाज है ना। सो इनडायरेक्टली वो बिलीव कर जाते हैं कि देयर मस्ट बी समबॉडी जिसने ये फर्स्ट कॉज के तौर पे इस कायनात को शुरू किया। लेकिन साथ ही में वो ये कहते हैं कि ये कायनात शुरू किस तरह हुई ये हम कंसीव नहीं कर सकते, ये हमारे लिए अननोएबल है। सो इसका मतलब ये हो कि गॉड ऑलमाइटी, एंजल्स, द ओरिजिन ऑफ दिस वर्ल्ड, दे आर नॉट डिनाइंग इट बट दे आर सेइंग इट इज अननोएबल। और ये कहते ही वही कहते हैं कि क्योंकि ये चीजें अननोएबल हैं इसलिए इनके ऊपर बहस मुबाहिसा भी नहीं कर, इसलिए इनको हम सोचते भी नहीं, इनको हम इनकॉपरेट भी नहीं करते नॉलेज में। तो ये अननोएबल कह के उन्होंने साइड पे कर दिया हुआ। दे हैव नेवर सेड, फिलॉसफी हैज नेवर सेड दैट देयर इज नो गॉड, दे ओनली से दैट इट इज अननोएबल। अब अननोएबल भी अगर है तो डज दैट मीन दैट यू स्टॉप डिस्कसिंग अबाउट दैट? अगर अननोएबल है तो इट इज ऑल द मोर स्टिमुलस टू डिस्कस अबाउट इट। बहरहाल अगेन इस डिबेट को मैं आज के सेशन के साथ रिलेट करना चाह रहा हूं, तो बहुत ज्यादा फैलाऊंगा नहीं, बट दिस इज दी बेसिस ऑन विच दे से कि क्योंकि ये तो अननोएबल है इसलिए हमें तो यही समझ आती है कि इंसान की क्रिएशन जो है वो स्टेप्स में है। ही वॉज अ लोअर स्पीशी, उसके बाद वो इवॉल्व होते होते बिकॉज ऑफ दीज वेरियस साइकिल्स ऑफ एवोल्यूशन एंड डिसोल्यूशन ये सब कुछ वजूद में आ रहा है। नाउ माई क्वेश्चन टू देम एंड टू दिस फिलॉसफी इज ओनली वन, एंड दैट इज if the start of this universe is unknowable, if that process is unconceivable, how is there must be a start of this process of evolution. ये जो evolution और dissolution है ये भी कहीं से शुरू हुई होगी। क्या वो beginning conceivable है? Can we conceive that beginning? If no, then this biological theory of evolution is also unknowable. फिर ये पूरी की पूरी वेस्टर्न साइंस की जो बेसिस हैं वो भी अननोएबल, एंड एज सच देयर इज नो पॉइंट टॉकिंग अबाउट दैम। बट ऑब्वियसली माय डिस्कशन टुडे इज नॉट टू चैलेंज दिस, बट आई एम जनरली क्लियरिंग इट इन योर माइंड्स दैट इफ समबडी टॉक्स अबाउट थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, प्लीज क्वेश्चन हिम फ्रॉम वेयर डिड द एवोल्यूशन स्टार्ट। क्या किसी ने देखा उस एवोल्यूशन को स्टार्ट होते हुए? एज दे से कि क्या किसी ने देखा है खुदा को दुनिया क्रिएट करते हुए? ठीक है, नहीं देखा। बट क्या किसी ने एवोल्यूशन होते देखी? क्या उसकी डायरेक्ट साइंटिफिक एविडेंस है, या वो एक लॉजिक की बेस पे फिलोसॉफिकल थ्योरी है? एंड इफ इट इज बेस्ड ऑन लॉजिक इट कैन बी रॉन्ग। सो ये जो अब वेव बाद में चली
एवोल्यूशन का आइडिया तो इंसान के जहन में हजारों सालों से, लेकिन मिड 19th सेंचुरी में आकर एवोल्यूशन के आइडिया को न सिर्फ बायोलॉजी ने अपनाया, डार्विन ने, बल्कि इसको फिर सोशल साइंसेज में भी। ट्रेजेडी मेरे ख्याल में नॉलेज की डिस्टॉर्शन यहां से शुरू होती है जब नेचुरल साइंसेज के प्रिंसिपल्स को ह्यूमैनिटीज के ऊपर लाद दिया गया और ह्यूमैनिटीज का नाम सोशल साइंसेज रख दिया गया, because of the influence of people like Herbert Spencer, who were the first sociologists. They said, they thought that the same concept of evolution can be applied to sociology, can be applied to politics, can be applied to psychology, can be applied to thought process, can be applied to society, anything. अब यहां पर फिर वही प्रॉब्लम आती है कि एक चीज जो साइंटिफिकली भी प्रूव नहीं, how can you apply that in humanities and in social sciences? उसके अप्लाई करने से काफी chaotic नॉलेज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है हुई। साइकोलॉजी जो बहुत करीब है स्पिरिचुअलिटी के, उसको एक अजीब मैकेनिस्टिक सब्जेक्ट बना दिया गया है। सिमिलरली पॉलिटिकल साइंस पे, सोशियोलॉजी पे, सोशल साइंसेस पे, बायोलॉजी के पैराडाइम्स को इम्प्रिंट किया गया है। उनमें से समझने समझाने के लिए पर्पस से तो कई एग्जाम्पल्स अच्छी हैं, लेकिन वो ये कहीं से प्रूव नहीं करेंगी कि क्योंकि ये एग्जाम्पल नेचुरल साइंसेस से आ रही है इसलिए मैनेजमेंट के भी असूल नेचुरल साइंसेस के तरीकों से ही तय हों। मैटर के ऊपर आप जो प्रिंसिपल्स लगाते हैं वो आप इंसान पे नहीं लगा सकते। जो प्रिंसिपल आप इंसान की बॉडी पे लगाते हैं वो आप इंसान की सोल पे नहीं लगा सकते। चलो अगर आप सोल को नहीं मानते तो जिस तरीके से आप इंसान के ब्रेन को ट्रीट करते हैं या समझते हैं या अंडरस्टैंड करते हैं, वो तरीके से आप माइंड तक नहीं पहुंच सकते। दिमाग में और जहन में फर्क है। साइंस कैन टेल अस अबाउट ब्रेन, बट व्हाट डज इट टेल अस अबाउट माइंड अपार्ट फ्रॉम स्पेकुलेशन, अपार्ट फ्रॉम थ्योरीज। सो जब माइंड हमारी फिजिकल रीच से बाहर है, that means we human beings or living things, we are very different than the matters of chemistry and physics. हम तो दो एलिमेंट्स नहीं है कि आपने एक एलिमेंट सल्फर लिया और एक पे आपने सल्फर पे थोड़ा नाइट्रिक एसिड डाला और आपने कहा सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। इंसान की तो शुरुआत और इंसान की जो कम्प्लेक्सिटी उसकी पर्सनैलिटी की है और जो बुलंदी उसके जहन की है, वो इस फिजिको केमिकल एस्पेक्ट से बहुत बुलंद है। एंड इट इज ऑन रिकॉर्ड दैट हर्बर्ट स्पेंसर हिमसेल्फ कंसीडर्ड दैट द सटलिटीज ऑफ द लाइफ, द डेलिकेसीज एंड द सटलिटीज ऑफ लाइफ, दे कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय फिजिको केमिकल एस्पेक्ट अलोन। तो खुद ये कंसीड करते हैं, और जैसे वो ये कंसीड करते हैं वैसे ही सोशल साइंसेस को, ह्यूमैनिटीज को नेचुरल साइंसेस के पैराडाइम से आज़ादी मिल जानी चाहिए, लेकिन नहीं मिली। अब इसकी रीजंस इतनी ज़्यादा लेंथी हैं दैट आई कैन नॉट गो इन दैम। बहरहाल फॉर आवर पर्पसेस हमारे लिए अभी तक ये समझना काफ़ी है कि बायोलॉजी के और नेचुरल साइंसेस के पैराडाइम्स को मैनेजमेंट और सोशल साइंसेस के पैराडाइम्स के साथ कंपेयर भी किया गया है, बल्कि ये कहा गया है कि मैनेजमेंट साइंसेस और सोशल साइंसेस के पैराडाइम भी इसी तरह हैं जिस तरह के नेचुरल साइंसेस। इसीलिए ये एग्जाम्पल जो हम बार बार देखते हैं ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनाइजेशन की, ये और एग्जाम्पल तो अच्छी है, लेकिन इससे ये तो कहीं प्रूफ नहीं होता कि जो पैराडाइम्स एक सेल को सरवाइव करने के लिए जो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट या जो फिजिकल लॉज या जो फिजिको केमिकल एस्पेक्ट चाहिए, वही फिजिको केमिकल एस्पेक्ट से आप किसी ग्रुप को मैनेज कर सकते हैं, या आप किसी टीम को मैनेज कर सकते हैं, या आप किसी इदारे को मैनेज कर सकते हैं, या आप किसी सोसाइटी को मैनेज कर सकते हैं, या आप किसी कंट्री को मैनेज कर सकते हैं। ये तो कहीं इससे प्रूफ नहीं होता। बट एग्जाम्पल अच्छी है। एग्जाम्पल तो शायर भी बहुत सी देते हैं। एग्जाम्पल तो लोग कहते हैं जी माय महबूब्स फेस इज लाइक मून, उसका चेहरे में तो चांद नजर आता है या चांद में उसका चेहरा नजर आता है, तो वो एक चीज तो नहीं बन जाते ना। मिसाल देना एक फर्क चीज है, समझाना एक फर्क चीज है, ओरिजिन्स फर्क चीज। लेकिन सिंस वी आर टॉकिंग टुडे ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इकोसिस्टम्स, और हम बात भी बायोलॉजिकल इकोसिस्टम्स की कर रहे थे, और फिर हम पॉपुलेशन इकोलॉजी की बात करेंगे जो कि प्योरली बायोलॉजिकल
बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है और हम उसको अप्लाई करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस पे, इसलिए आई थॉट दैट इट इज बेटर इफ आई गिव यू a background of why these concepts of natural sciences or biology are adapted to natural sciences, to social sciences, to humanities. So I'm sure that the wave of knowledge has gone, is not in the control and is not in our control. So we need to understand the history behind it. So Muslim history, हमें पता है कि 500-600 साल से हमारे यहाँ तो कोई खास progress नहीं हुई. West started progressing away from religion, away from metaphysics, and it ended up where it is today. It is claiming that man has reached the height of its maturity and intelligence, and everything can be explained on the basis of mechanics and machines, and this is all the effects of positivistic movement जिनको start करने वालों में से एक हर्बर्ट स्पेंसर हैं, कॉम्टे हैं, डार्विन. These are the people who पॉजिटिविस्टिक साइंस जिन्होंने शुरू की और आगे उसको फिर आइंस्टाइन ने, बर्ट्रैंड रसल ने, उसे इनके साथ साथ फ्रॉयड ने, इन लोगों ने उसको नॉलेज को एक नई शक्ल दे दी. और इसमें से कई एलिमेंट मिसिंग हैं क्योंकि एलिमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, एलिमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स, एलिमेंट ऑफ माइंड इज बिहाइंड और मैटर को यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंस. तो हम देखते हैं इन पैराडाइम्स को, बायोलॉजी की और सोशल साइंसेस के पैराडाइम्स को हम कंपेयर जब करते हैं तो इट इज वी कैन से दैट ऑर्गेनाइजेशंस कैन एक्ट एज इकोसिस्टम. एक समझ के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक कॉम्प्रीहेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज नॉट अ बैड सिमिली, बट प्लीज स्टॉप थिंकिंग इन योर माइंड दैट आई एम ट्राइंग टू रीइंफोर्स द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. इन फैक्ट आई एम रिजेक्टिंग द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. मैंने अपना रिजेक्शन पहले ही आपको पेश कर दिया कि फिर ये एवोल्यूशन का प्रोसेस कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ खत्म होगा. अगर इसकी बिगिनिंग और इसका एंड भी अननोएबल है तो फिर ये नॉलेज भी अननोएबल है. बट नॉट ओनली दैट एवोल्यूशन इटसेल्फ इज क्वेश्चनेबल, इसको आप अप्लाई करना शुरू कर दें पॉलिटिक्स में भी, ह्यूमैनिटीज में भी, साइकोलॉजी में, ये और भी अनएक्सेप्टेबल. लेकिन फिर भी हर चीज में अच्छे बुरे पहलू हैं, हम किसी चीज को इन टोटो तो रिजेक्ट नहीं करते. So let's try to see if there are some concept of the natural sciences जिनसे हमें social sciences की कुछ चीज़ें बेहतर समझ आ जाती हैं. So there is no harm in trying those concepts. जिस तरह के concept evolution का है, उसके साथ co-evolution का concept है biology में कि species एक दूसरे के साथ इकट्ठी co-evolve होती हैं. और organizations को भी कहा जाता है कि वो co-evolve इकट्ठी होती हैं. But that should theoretically mean that they should not compete with each other. But they do compete with each other. And also, we need to understand now the inter-organizational framework. अब हमने actually समझना है the relationship between different organizations as those relationships are developed. क्यों कुछ organizations competitor होती हैं, कुछ collaborate कर जाती हैं, कुछ network बना लेती हैं, why this happens? इस सारी background पे जाने के लिए I needed to build this background of biology and evolution. But now let's see what is this inter-organizational framework which can describe to us the various relationships which organizations have with one another. Again, taking two variables and of inter-organizational relationships or inter-organizational relationships among different organizations can be characterized by whether the organizations are similar or dissimilar. एक हमारे पास criteria आ सकता है. Organizations can be similar to each other, एक जैसी हैं, एक ही इंडस्ट्री की हैं, or they can be dissimilar to each other. For example, food beverage industry is all similar with each other. Food beverage is very dissimilar to, for example, fashion clothing. और एक characteristics जिस पे हम organization को compare कर सकते हैं, that could be whether their relationships are competitive, वो एक दूसरे के साथ compete करते हैं, या cooperative हैं. That is also a possibility. The organizations can be competitive with each other and they could be cooperative with each other. और फर्ज कीजिए हम बात कर रहे हैं organizations की जो कि dissimilar भी हैं और competitive भी हैं एक दूसरे से. So if the organizations are dissimilar but they compete with each other, तो उनके लिए
एक ट्रेडिशनल उनका रिलेशनशिप है आपस में, बिकॉज दे आर डिसिमिलर प्लस दे compete विद ईच अदर. सो उनका जो हम इंटर ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से उनको जो नाम देंगे वो ये होगा कि ये जो फ्रेमवर्क यूज करेंगी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने का, वो रिसोर्स डिपेंडेंस का होगा. फिर एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन डिसिमिलर हूं लेकिन कोऑपरेटिव हूं. उस सूरत में इनका जो आपस में फ्रेमवर्क ये यूज करेंगी रिलेशनशिप में, वो उनको हम कहेंगे कोलैबोरेटिव नेटवर्किंग. और एक सूरत ये भी हो सकती है कि वो सिमिलर हूं, जैसे हमने ये कहा फूड इंडस्ट्री है, सिमिलर होने के साथ वो कंपैरेटिव हूं. विद इन फूड इंडस्ट्री देयर आर मेनी कॉम्पिटिशंस अकरिंग विद इन दी फूड इंडस्ट्री. तो इस जगह हम यूज करेंगे मॉडल ऑफ पॉपुलेशन इकोलॉजी. एंड फाइनली दे कैन बी सिमिलर एंड कोऑपरेटिव व्हिच विल गिव अस द मॉडल ऑफ इंस्टीट्यूशनलिज्म. तो ये फ्रेमवर्क which has just defined the interorganizational relationships in terms of either resource dependency or institutionalism or collaborative networks or population ecology. इन मॉडल्स को या इन इंटरऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप फ्रेमवर्क्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, तो फिर हमें ऑर्गेनाइजेशंस के जो रिलेशनशिप हैं एक दूसरे के साथ उनकी समझ आएगी, बेहतर समझ आनी शुरू होगी. रिसोर्स डिपेंडेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दिस फ्रेमवर्क विच इज कॉल्ड रिसोर्स डिपेंडेंस. इसमें हमारे लिए कोई नई चीज नहीं. नई चीज इसलिए नहीं है बिकॉज वी हैव बीन स्टडिंग रिसोर्स डिपेंडेंस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. क्योंकि बेसिक एजम्पशन हमने हमेशा से, जब हम मैनेजमेंट पढ़ते हैं या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या बिजनेस पढ़ाई जाती है, तो एक एजम्पशन तो बेसिकली यही है that companies are competing for resources. इसका मतलब है कि वो कंपनीज आपस में compete कर रही हैं और वो dissimilar है. तो जहां पर भी organizations are dissimilar to each other and they are competing, that will be the traditional view of inter-organizational relationship, and the traditional view is of resource dependence, which says that resources are scarce. नायाब है resources, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हों, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हों, फिजिकल रिसोर्सेज हों, रिसोर्सेज आर स्केर्स एंड कंपनीज फाइट एंड कंपनीज engage in competition with each other to gain control of these resources. So, comparative and dissimilar organizations are put in this framework where they traditionally compete with each other, and strategies to overcome resource dependence वो भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं. वो स्ट्रेटजीज थी ओनरशिप की, परचेज कर लें कंपनी, सारे के सारे रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे, आप अपने सप्लायर्स परचेज कर लें, जॉइंट वेंचर्स बना लें, इंटरलॉकिंग डायरेक्टोरेट्स रख लें, ट्रेड एसोसिएशंस बना लें, मर्जर्स कर लें, जॉइंट वेंचर्स कर लें. ये सारी चीजें, ये सारे strategies are to overcome resource dependence. And I will not go in further detail of resource dependence because we have discussed it. And remember, जहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन डिसिमिलर हैं और वो कंपेटिटिव रिलेशनशिप में है एक दूसरे के, वो एक दूसरे से फाइट करेंगी रिसोर्सेज के लिए. अब अगर हालात चेंज हो जाते एंड somehow because of technology or some other breakthrough, suppose these dissimilar organizations become cooperative. पहले तो ये कंपैरेटिव थी एक दूसरे से, अब अगर ये कोऑपरेटिव हो जाती तो फिर जो हम फ्रेमवर्क यूज करेंगे वो क्या होगा. पहले तो हम पहले एग्जांपल ये देखना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पर डिसिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस आर टीमिंग अप और आर गेटिंग कोऑपरेटिव. इसमें एग्जांपल जो रिसेंट सबसे बड़ी सामने आती है, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन अगेन, न्यू वेव ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन डिजिटल कम्युनिकेशन का जब बिल्डअप हुआ, तो I'll purely stick to Pakistan so that you understand it in local scenario. You must be remembering 7, 8, 9 years ago there were no ATM machines. Bill pay करने आपने होते थे तो you used to queue outside the banks and you had to go to the banks to credit the checks. अब रात को 1 बजे आपको जरूरत पड़ जाएगी तो बैंक तो 1 बजे नहीं खुले होते थे. अब वो हालात चेंज हो गए, वो हमारे सामने हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से. अब हुआ क्या है कि जैसे ही ये कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन बिल्टअप हुई, तो बहुत सी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर, बहुत सी लोकल फोन कंपनीज, बहुत सी केबल टीवी ऑपरेटर्स,
बहुत सी सेलुलर फोन कंपनीज और इवन वाटर और गैस यूटिलिटी कंपनीज, इन्होंने एक दूसरे के साथ टीम अप करना शुरू कर दिया। अब आई कैन नॉट टेक एनी ब्रांड नेम्स, बट यू नो कि आपके पास जब बिल आता है, उस बिल के ऊपर आपको इंडिकेशंस नजर आएंगी, स्पेशली अगर आप किसी बाहर की कंट्री में देखें तो डेफिनेटली होंगी, कि आप ये 3 और 4 बिल इकट्ठे फ्लां कार्ड के थ्रू पे करें, आसानी से पे हो जाएंगे। या यानी मर्ज कर रही हैं डिसिमिलर कंपनीज भी टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हुए एक दूसरे के करीब आ रहे। बैंक्स जो हैं वो सेलुलर फोन्स के करीब आ रहे हैं, इनकी आपस में इकट्ठी एक दूसरे की डील्स को प्रमोट करते हैं। कंबाइंड प्रमोशंस आपने देखी होंगी, किस तरह से केबल टीवीज और केबल नेटवर्क्स सेलुलर फोन कंपनीज के साथ मिलकर कंबाइन करते हैं प्रमोशंस अपनी। फोन कंपनीज, सेलुलर फोन कंपनीज टीम्ड अप हैं बैंक्स के साथ। आप अपना फोन बैंकिंग के जरिए हालात पता कर सकते हैं कि आपके बैंक में कितने पैसे हैं, लास्ट आपने जो 5 ट्रांजैक्शंस की हैं वो क्या किस तरह थी, अभी क्या है। दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ टीमिंग अप ऑफ फोन कंपनीज and cellular phone companies and banks. So this is the scenario of collaboration networks where the companies are dissimilar, no doubt, but their relationship with each other is not competitive but is cooperative, and they share the risk and they enhance their corporate profiles. Because if you go to a bank and you ask them कि आपके क्या एडवांटेजेस होंगे मुझे आपके बैंक में अकाउंट खोलने से, तो अपार्ट फ्रॉम देयर टिपिकल फाइनेंशियल एडवांटेजेस और बैंकिंग एडवांटेजेस, दे विल आल्सो टेल यू दैट वी ऑफर फोन बैंकिंग और मोबाइल फोन बैंकिंग। अब ये वो अपनी कॉर्पोरेट प्रोफाइल बढ़ा रहे हैं, एनहेंस कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव टीम्ड अप विद अ वेरी डिसिमिलर ऑर्गेनाइजेशन। और यू गो टू अ यूटिलिटी और अ वाटर यूटिलिटी सप्लायर कंपनी और एन इलेक्ट्रिक और अदर यूटिलिटी सप्लाई कंपनीज, उनके भी आप देखेंगे कि इस तरह की टीमिंग अप विद बैंक्स, टीमिंग अप विद फोन कंपनीज, यू कैन सी। तो वो सारे एक दूसरे की कॉर्पोरेट प्रोफाइल बढ़ा रहे हैं और रिस्क को कम कर रहे हैं। ज़ाहिर बैंक में जब फोन कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके बैंकिंग 24 घंटे की हो जाएगी, तो वो जो रिस्क था बैंक को कि शायद कुछ लोग बैंक अकाउंट ना खोलें, जो लोग जिनका बिजनेस सर्कल साइकिल इस तरह का है कि वो 5-6 बजे शाम के बाद भी चलता है, जिनकी इवनिंग और नाइट शिफ्ट भी हैं, अब तो वो भी बैंकिंग में इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द फोन सर्विसेज अवेलेबल। तो वो रिस्क भी कम हो रहा है, कॉर्पोरेट प्रोफाइल भी बढ़ रही। ये कल्चरल आउटकम्स हैं, जैसे जापान है, कोरिया है, वहां पर लॉन्ग ट्रेडिशंस हैं कॉर्पोरेट क्लाइंट्स की, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स की। हमारे यहाँ इतनी नहीं है, वेस्ट में भी इतनी नहीं है, लेकिन जापान में, कोरिया में ये वेव पहले शुरू हुई। टेक्नोलॉजी ने इस वेव को ज़्यादा करीब पहुंचा दिया टूवर्ड्स कंट्रीज लाइक अस। और अब जो रिलेशनशिप्स हैं among the companies, they are not considered as based on adversary, they are considered to be based on partnership rather than adversary. Because they know that if we keep on fighting for resources only, then we will be missing out on many opportunities to grow. So the change of stance from competition to cooperation, from adversary to being partner of each other. And then we also discussed that we can have a situation where the companies are competitive in nature. Competitive है उनका relationship आपस में, और वो similar भी है। और इसमें हमने जो एग्जांपल दी थी आपको सिमिलर और कंपैरेटिव में, फूड, लाइक फॉर एग्जांपल फास्ट फूड, यू नो देयर आर 2 or 3 बिग ब्रांड्स ऑफ फास्ट फूड कंपनीज। अब वो सिमिलर हैं एक दूसरे से, बट दे कम्पीट विद ईच अदर। अगर वो डिसिमिलर होते और कम्पीट कर रहे होते तो उनके ऊपर वो टिपिकल रिसोर्स डिपेंडेंस का मॉडल अप्लाई होता, बिकॉज डिसिमिलर हैं। लेकिन अब वो क्योंकि एक ही नीश में है और वो सिमिलर हैं और compete कर रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर जो फ्रेमवर्क अप्लाई हो रहा है ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप का, वो पॉपुलेशन इकोलॉजी का फ्रेमवर्क, अगेन डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम बायोलॉजी। अब हम फिर आते हैं इकोलॉजी की तरफ, एनवायरनमेंट की तरफ। एक और चीज विच आई
did not mention while I was discussing the philosophy of environment, उसमें ये सवाल भी उठता है that what is evolution, कि वो डिफाइन कैसे करेंगे? तो वो कहते हैं लाइफ या एवोल्यूशन जो है वो लाइफ ही है, या लाइफ जो है वो एवोल्यूशन है. सो इन शॉर्ट दे डिफाइन लाइफ एज the adjustment, as the internal adjustments of living things to external conditions in environment. अब ये है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन इसका मतलब ये है कि जैसे ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होता है, हमारे अंदर कोई इंटरनल एडजस्टमेंट्स होती हैं, हमारे ऑर्गन्स में, हमारी नर्व्स में, हमारी आर्टरीज में कुछ होता है एडजस्टमेंट, हमारे जीन्स में, जो उस एनवायरनमेंट की चेंज के साथ मैच कर जाती हैं. यहां पर फिर एक क्वेश्चन फिलॉसफी से पूछा जाता है, फिलोसोफर्स, पॉजिटिविस्टिक फिलोसोफर से पूछा जाता है, हु कंट्रोल्स दिस चेंज? जब एनवायरनमेंट में एक्सटर्नल चेंज आती है तो बॉडी में जो चेंजेस आती हैं वो कोऑर्डिनेट किस तरह होती है? एंड फिलोसफी डज नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, साइंस डज नॉट आंसर दिस क्वेश्चन. इसका जवाब फिर हर्बर्ट स्पेंसर यही देते हैं कि लाइफ के हर एस्पेक्ट को आप फिजिको केमिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते. तो जब फिजिको केमिकली एक्सप्लेन हर एस्पेक्ट को नहीं कर सकते, तो देन व्हाई डू वी यूज फिजिको केमिकल पैराडाइम टू एक्सप्लेन लाइफ? बहरहाल ये भी एक पॉइंट है जो मेरे जहन में नहीं था उस वक्त व्हेन आई वाज डिस्कसिंग द फिलॉसफी ऑफ एवोल्यूशन विद यू, बट दिस इज आल्सो अ क्वेश्चन व्हिच इज टू दिस डे unanswered. Population ecology framework talks about similar organizations which are competing with each other. Focus is on organizational diversity and adaptation within a population of organization. A population of organization here would mean organizational with similar characteristics, organization with similar products, similar services, similar customer bases, similar employees, similar stakeholders. उनको हम एक population कह देंगे, और आप अच्छी तरह से एज ए मैनेजमेंट स्टूडेंट जानते हैं कि उस पॉपुलेशन के अंदर जो अपॉर्चुनिटी की विंडो है उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए या कंपनीज के लिए, वो नीश है उनकी. ए पॉपुलेशन इज अ सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंगेज्ड इन सिमिलर एक्टिविटीज विद सिमिलर पैटर्न्स ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड आउटकम्स. आउटकम्स भी एक जैसी. लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस बिकम डायनासोर्स. लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस स्टार्ट बिहेविंग लाइक डायनासोर्स, whereas new organization forms that fit the current environment would emerge. अब large organization क्या है? टेक्नोलॉजी अगर फर्ज करें हम 15 साल पहले की बात कर रहे हैं, जहां ग्लोबलाइजेशन नहीं थी, 20 साल पहले जहां पर अभी इतनी ज्यादा ई बिजनेस भी नहीं थी, बल्कि थी ही नहीं, वहां पर पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस जो रिटेलर्स थे या डिस्काउंट रिटेलर्स थे या wholesalers, they were becoming big and big and big, and finally they had become as big as dinosaurs. तो वहां पर नई टेक्नोलॉजी ने, a change in environment, introduced new forms of business, e-business. इसमें अगेन अब आप एग्जांपल लें गैस स्टेशन. गैस स्टेशन क्योंकि हमारे सामने चेंज हो रहे हैं. Remember 15-20 years ago, gas stations were what? I mean, they were nothing. Just a petrol, 3 or 4 petrol points and dusty yards and nothing else. आज आप जब जाते हैं किसी गैस स्टेशन पे, तो वहां पर ना सिर्फ आपको पेट्रोल मिलता है और सीएनजी मिलती, बल्कि साथ में यू कैन हैव ग्रोसरी, क्योंकि साथ छोटे छोटे स्टोर्स बने हुए. यू कैन हैव एनी ड्रिंक, यू कैन हैव न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, कुछ भी जो छोटा मोटा स्टोर में जो चीजें मौजूद होनी चाहिए. So the face of those gas stations are changing. क्यों? Because of change in environment, change in technology. तो ये जब डायनासोर्स बन जाती हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, और अब जैसे ई बिजनेस आई और ई बिजनेस ने एनेबल कर दिया कि छोटी कंपनीज भी घर बैठे हुए इन डायनासोर के साथ compete कर सकें या इनके साथ बिड कर सकें, बिड इन अ सेंस कि कंज्यूमर को बिड कर सकें. एंड ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म, अब इसमें बार बार बात आती है organizational form की. Organizational form is an organization's specific technology, structure, products, goals, people, which can be selected or rejected by the environment. अब आप यहाँ देखें, sometimes you will feel that social sciences के ऊपर थोड़ी ज्यादती हो रही है, उनकी टर्म्स को जबरदस्ती बनाया जा रहा है दी टर्म्स ऑफ नेचुरल साइंस. यहाँ पर आपको शायद वो फील हो,
Nature, selection and rejection by the environment is a term which is very typical of biology, and it is now used here in the context of organizational form. Organizational form is not one company. It is not the structure of a company. It is not the design of a company, but the specific technology plus structure plus design plus goals, products and people. तो वो कहते हैं जी ये organizational form बन गई है. And each new organization or each new organizational form tries to find a niche. Niche is that particular window of opportunity जहाँ पे आपने अपनी टारगेट मार्केट को हिट कर लिया, जहाँ पे आपने अपनी मुताबिक बिजनेस को बना लिया, given your resources, and you sit in that niche along with other organizations. अब वो ये कहते हैं कि इस niche में जब आप होते हैं दूसरी organizations के साथ, तो यहाँ पर biological process of variation, genetic variation, इसी तरह वो कहते हैं कि organizations के अंदर भी variations हैं. कोई बहुत strong है marketing में तो कोई weak है, कोई finances में strong है, किसी की quality control बहुत अच्छा है. So there are various variations among very similar organizations. So the process of variation occurs. A large number of organizations appear in the population of organizations. वहाँ से फिर वो कहते हैं कि वेरिएशन के बाद सिलेक्शन होती है. सिलेक्शन जैसे बायोलॉजी में है कि जिन ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्टिव जगह मिल जाती, हैबिटाट मिल जाता है, वो सर्वाइव करते हैं. इसी तरह उन्होंने कहा कि जिन ऑर्गेनाइजेशंस को निशेस मिल जाती हैं वो सर्वाइव कर जाती हैं, वो सिलेक्ट हो जाती हैं. एंड फाइनली सिलेक्शन के बाद है प्रोसेस ऑफ रिटेंशन. ये जो बच गई ऑर्गेनाइजेशंस, इनमें से a few organizations grow large and become institutionalized in their environment. अब पॉपुलेशन इकोलॉजी मॉडल ये बायोलॉजी से डायरेक्टली लिया गया है, ड्रॉ किया गया है, और बेसिक बात इसमें यही की गई है कि if the organizations are similar to each other and they are competing with each other, then they are very much like the species सर्वाइविंग इन अ जंगल और अ फॉरेस्ट. और उसमें भी जो सिमिलर स्पीशीज हैं वो एक नीश में या एक हैबिटाट में रहना शुरू होती हैं. उस हैबिटाट के अंदर प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, वेरिएशन, सिलेक्शन अकर्स एंड इट सिलेक्ट्स अ फ्यू ऑर्गेनिजम्स और स्पीशीज विच आर रिटेन्ड. और इसी तरह यहाँ पर उन्होंने कहा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस रिटेन्ड हो जाती हैं, बाकी डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं. तो दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ लुकिंग एट the interorganizational framework जिसकी हमने आपसे बात की. अब the only option which is left are those organizations which are similar to each other and which are cooperative. So अगर वो similar भी हैं और cooperative भी हैं, then they are using the framework of institutionalism. ये चौथा framework था, on top of resource dependence and population ecology and the collaboration networks. This was the fourth framework of institutionalism. इसमें यह है, this view says that organizations need legitimacy from their stakeholders. अब ये institutionalism basically आपने देखा होगा population ecology में जो हमने last बात की थी, that a few organizations grow large and become institutionalized in the environment. So basically ये क्योंकि organizations एक दूसरे से सिमिलर भी हैं और कोऑपरेटिव हैं, इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशंस जब ग्रो करती हैं तो ये अपने एनवायरनमेंट के साथ बिल्कुल इंस्टीट्यूशनलाइज या एक मर्ज नॉट फिजिकल मर्ज, बट दे आर formed around their stakeholders. Basically, this is a theory of stakeholders, that these organizations coexist with their stakeholders. Companies perform well when they are perceived by the larger environment to have a legitimate right to exist. और larger environment क्या है? Stakeholders. So वो companies better perform करेंगी जिनके बारे में stakeholders की perception ये है, larger environment की perception ये है कि these companies have a legitimate right to exist. Legitimate right to exist means that their experience, their management, their strategies, their products, they all are legitimate and therefore they have a right to exist. The institutional view believes that organizations adopt structures and processes to please outsiders or society. और ये outsiders कौन हैं? Stakeholders. तो इस view के मुताबिक organizations के structures, उनके processes, why they are mechanistic, why they are organic,
why they have a focus on formal structure or divisional structure or process structure, is all because they are trying to please their outsiders or please the society, because they are amalgamating in the society, they are part of society. So this view essentially treats organization from a very sociological aspect, and it says that they are not only making money and making profits, but they are pleasing the outsiders. और यहीं से शायद concept of customer delight and customer pleasure and the cliches which we hear in the business jargon like customer satisfaction, customer delight, customer pleasure, they are all coming from this paradigm of institutionalism. कि अगर आप अपने स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, हैप्पी नहीं करेंगे, प्लीज नहीं करेंगे, तो उनका आपके ऊपर से फेथ उठ जाएगा और शायद उनके परसेप्शन ये बन जाए कि आपको लेजिटिमेट राइट ही नहीं है एग्जिस्ट करने का, बिकॉज यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू देयर नीड्स. इफ यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू देयर नीड्स, देन व्हाई आर यू एग्जिस्टिंग? So these are the various frameworks which are used to understand and study the relationships which different organizations have with one another. So in this discussion today, we started from the discussion of environment, as you know, in the last 2 sessions. And while discussing environment, we also discussed how companies form relationships with each other. Because mostly in management and in OB courses, you will be discussing the relationship which company has with its customers, with its employees and other stakeholders, and competitors will be seen mostly as adversaries, and there will be efforts on the part of the companies to win resources from them. ये traditional था resource based view. इस discussion ने, I'm sure, has enriched your thoughts that with changing technology and changing environment, and especially the environment of globalization, ये typical resource dependence view has been changing, and companies are finding other ways to survive and other ways to exist, जिनमें direct competition with each other is one way, but there are also ways where they are forming cooperative relationships with each other. और जहां भी वो cooperative relationship एक दूसरे से बना रहे हैं, their ultimate objective is to please their stakeholders, is not only to survive, but is also that they get selected for retention. And once they are retained in the environment, once their brand name becomes a brand equity, once they become established, then they fully adopt the framework of institutionalism, and their whole focus moves towards their stakeholders. Out of these stakeholders, obviously, customers are the most important end users. Lekin, the importance of employees and the importance of suppliers and the importance of other institutions cannot be ignored. So if these organizations are pleasing and satisfying each member of the stakeholder of their environment, in that case, that framework which they are using is the framework of institutionalism, because अब उनका आपस में resources पे झगड़ा नहीं है, बल्कि शायद उनका आपस में इस चीज पे they will be scoring points against each other, at which organization can better satisfy or can better please its stakeholders. Now here, if you look very deeply in this assertion, you will see that ultimately, in order to please your stakeholders and please your customers and please your employees and your suppliers, you need resources. You need human, physical and capital and financial resources. You need human beings with extremely good competencies and capabilities who can ensure that you please your stakeholders. You cannot please your stakeholders without competencies and capabilities. And competencies and capabilities are resources. So for the sake of discussion and for the sake of understanding interorganizational linkages
these frameworks are good. But my assertion is that we have to have that traditional view of resource dependence, because if we take that out, or if we lessen its importance, then we are actually directly attacking the competitive advantage concept of resource based view. अगर रिसोर्स पे डिपेंडेंसी नहीं है या कम हो गई, तो जो पूरा का पूरा रिसोर्स बेस्ड व्यू है जिसकी वजह से कंपनीज कंपैरेटिव एडवांटेज क्रिएट कर रही हैं, फिर वो कहां से आए? तो आपने देखा कि साइंसेज में या बुक्स में जो चीजें हम लिखते हैं, पढ़ते हैं और जिन चीजों को हम डिस्कस करते हैं, उनको हम एज सच अपनी अपनी सोसाइटीज में अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज उनमें बहुत से लेक्यूनास होते हैं और वो बनी अपने अपने कल्चर्स के लिए होती हैं. एंड इफ द इकोसिस्टम्स ऑफ बायोलॉजी, उसमें अगर हम रिसोर्स डिपेंडेंस की बात करें तो कभी भी उसमें भी रिसोर्स डिपेंडेंस खत्म तो नहीं होगी. इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस में भी अल्टीमेटली ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस विल एटलीस्ट बी डिपेंडिंग ऑन द ह्यूमन रिसोर्सेज. And I can't imagine any organization which is running without human beings and physical resources and financial resources. I mean, there could be virtual organizations, but then they also have resources. They have human beings. They might not have a physical presence in the shape of an office or a campus, but then they have all the required infrastructure. So resource dependence view is a predominant view because that is the natural view of organization. And to me, it is the most crucial because it is also the part and parcel of resource-based view of organization, which is one of, and I think the other competitor available to resource-based view is the positioning, is actually the industrial organizational view of Michael Porter. So agar hum resource-based view ko le lein, so then we are left with hardly anything to directly impact or affect comparative advantage of a company. तो फिर कंपनी बगैर रिसोर्सेज के या रिसोर्स डिपेंडेंस के हाउ कैन दे क्रिएट अ कंपैरेटिव एडवांटेज? ठीक है, रिसोर्स डिपेंडेंस डज नॉट हाईलाइट द it does not say that resources do not form comparative advantage, but it tries to minimize resource dependence. That is fine. You can reduce it, but you cannot get away with it. And plus, building your own capabilities and competencies is always going to give you comparative advantage. So जितनी भी आप resource dependence कम कर लें, फिर भी resource dependence किसी ना किसी हद तक capabilities और competencies की form में आपको बर्दाश्त करनी ही हो. With this, I'll wrap up this discussion on interorganizational relationships. Thank you very much. Allah Hafiz.